अब हम लोग आज बात कर रहे हैं कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट देन एसिंक्रोनस काउंटर्स. सो लेट अस रीड इट. The term synchronous refers to the event that have fixed time relationship with each other. तो जैसे कि इसका नाम है वैसे ही इसका मतलब है कि एक जो क्लॉक दे रहे हैं हम लोग वो सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ ही देते हैं. तो सिंक्रोनस काउंटर इज वन इन विच all the flip-flops in the counter are clocked at the same time by common clock pulse. So you see, these are two synchronous flip-flop, synchronous counter. ये 2 बिट काउंटर, सबसे सिंपलेस्ट काउंटर हम लोग चूज किए हैं देखने के लिए, और ये जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया और ये डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया. तो इसमें अगर हम लोग देखें कि क्लॉक पल्स, this is clock, it goes to this and this same clock goes to this. So this is major difference between synchronous and asynchronous counter. इसमें क्लॉक पल्स हम कॉमन क्लॉक पल्स से सारे जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उसमें हम लोग क्लॉक देते हैं. So they trigger at the same time. The synchronous counter is one in which all the flip flops in the counter are clocked at the same time by common clock pulse. The JK flip-flops are used to illustrate most synchronous counter. Deep flip-flop can also be used but generally require more logic because of having no direct toggle और no change state. तो toggle state JK flip-flop में जो होता है उसका ही यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसलिए बोले कि JK flip-flop frequently यूज किया जाता है. Deep flip-flop भी यूज किया जाता है, बस उसके लिए कुछ लॉजिक चाहिए. देन थोड़ा सा हम लोग और इसको समझने का कोशिश करते हैं. ये इसका क्लॉक दिखा रहा है. सो दीज आर 4 पल्सेस एंड हाउ दिस Q0 and Q1 changes be using this Q1 Q0 is the FF नॉट का जो आउटपुट है वो Q0 है एंड ये जो है इसका Q1 है. और 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 to the power n means 4 states होंगे. It can count up to that. And हम लोग यहाँ पे 0 0 0, it can have 0 0 0 1 1 0 1 1. It can count up to 3. 4 स्टेट है मतलब 3 तक काउंट कर सकता है. तो ये कैसे वेरी करता है, ये इसका टाइमिंग, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिस्प्ले. मतलब ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, कैसे क्लॉक दे रहे हैं ऐसे. So the operation of JK flip-flop synchronous counter is as follow. First, we assume that counter is initially in the binary 0 state. Hence, both flip-flops are reset. When the positive edge of first clock pulse is applied, FF4, FF0 मतलब पहला वाला flip-flop will toggle and Q0 will be therefore go high. Toggle करेगा मतलब 0 था, toggle करेगा मतलब 0 से 1 हो जाएगा उसका आउटपुट. It will go high. What happened to FF1 is the positive going edge at clock 1. So to find out, let's look the input condition of FF1. इसमें हम लोग क्या इनपुट में दे रहे हैं, तो इनपुट में हम लोग ये दे रहे हैं, इसका आउटपुट इसके इनपुट में दे रहे हैं. So और क्लॉक सेम टाइम पे दे रहे हैं. To find out input J1 K1 are both low because Q0 to which they are connected has not yet gone high. Remember, there is a propagation delay from triggering edge of the clock pulse until the Q output actually makes a transition. So J is equal to 0, K is equal to 0 when the leading edge of the first clock pulse is applied. There is no change condition and therefore FF0 does not change state. तो क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे क्लॉक देते हैं, क्लॉक तो दोनों का एक साथ दे रहे हैं, और इसमें जो कंडीशन जो हमने इनपुट दिया, क्लॉक लिया and it became 0 to 1, but there is a propagation delay because of that. जब इसको क्लॉक दिया तब ये 0 नहीं, तब ये 1 नहीं था, तब ये 0 था. तो जब ये 0 था तो 0 is a non change state, so it means there will be no change. तो ये चेंज हुआ और ये चेंज नहीं हुआ जब पहली बार हम लोगों ने क्लॉक दिया. So similarly, you see this you can see in this picture. So when we give first clock,
it goes up but it remains down. फिर जब दूसरी बार क्लॉक देंगे तो ये डाउन हो गया, but since it was 1 so it goes up. And then again fourth time ये यही वाला हो रहा है, जब ये अप जा रहा है, so because of propagation delay there will be no change here, it will remain like this, and then again it goes down, then it comes down. So by understanding this portion we can understand this whole process कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, जब हम क्लॉक देंगे तो कैसे ये रिएक्ट करेगा, कैसे ये रिएक्ट करेगा, एंड हाउ दिस इज हाउ वी विल सी दिस. तो अभी हम लोग देख सकते हैं जब क्लॉक 1 है तो ये क्या है, Q जो पहला होता है उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये प्रेजेंट करता है, दिस लास्ट वन रिप्रेजेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सो व्हेन वी गिव फर्स्ट क्लॉक, पहले तो दोनों 0 0 है, पहला क्लॉक दिया तो क्या हो गया, ये 1 हो गया. So this is Q0, this is Q1. So least significant 1 हो गया, ये 0 रहा, तो इसका मतलब 1 है. यहाँ पे जब आए तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया. तो this, if you want to make a table, then you will have पहले 0 0 है दोनों, फिर 0 1, फिर 1 0, this is 0 1, this is 1 0, and this is 1 0. then यहाँ पे क्या है, दोनों ऑन है, तो 1 1, this is 1 1, and then again comes again to 0 0. तो क्या होगा, 4 स्टेट्स है, 0 0 0 1 1 0 1 1, and then again 0 0. तो ये क्लॉक काउंटर एक्ट्स लाइक दिस. सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कैसे ये सिंक्रोनस काउंटर काम कर रहा है, इसका जो टाइमिंग पल्स है ये कैसे है, and how it represent this counting. ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखे, दिस इज 3-bit काउंटर. तो इसमें क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो ये कितने काउंट कर सकते हैं, 2 to the power 3 मीन्स 8. तो इसमें 8 पल्सेस ऐसे दिखाया गया है, और ये 8वें पे फिर 0 0 हो जाएगा, मतलब विल काउंट अप टू 7. So initially you can see how it works. So when we give high, it becomes on, this becomes unaffected, this becomes unaffected. Next time when it comes down, it goes up, but it remains unaffected. नीचे वाला कब अफेक्ट होगा, जब ये डाउन आएगा, फिर ये अप हुआ, it remains unaffected, it remains unaffected. In a fourth time when it goes down, so this goes down, this goes down, and then this goes up. सिमिलरली जैसे हम लोग दूसरे में देख रहे थे, ऐसे ही इसका पूरा जो टाइमिंग सर्किट है, टाइमिंग सीक्वेंस है, इसको हम लोग समझ सकते हैं. When the Q1, Q0, Q1, Q2 will be having what will be the output of that, we can see here, and we can understand how this works. So it is in toggling mode. जब हम लोग यहाँ पे 0 दे रहे हैं तो ये initially it is 0, when you give it in clock it becomes 1, लेकिन ये propagation delay इसमें है, जब तक ये 1 होगा तब तक हम यहाँ पे इसको ट्रिगर कर चुके होंगे, तो ये 0 ही रहेगा, तो this will have no change, this will have no change, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा. और ऐसे ही ये 8 स्टेजेस हम लोग समझ सकते हैं, how we see this. And if you have LEDs here, you can put 1 की जगह पे LED on है, 0 की जगह पे LED ऑफ है, तो हम लोग ये Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2 ऐसे करके लिखते हैं. तो ये इस चीज को हमको समझना है कि Q0 is the least significant, so you write here, then Q1, then Q2. Q2 is the most significant digit, and then these are the binary number. It's 0 0 0, 0 0 1, so it shows 1, 0 1 0, so it's 2, 0 1 1, so 3, 1 0 0 4. So this is how it can count up to 7. Then again it goes down, and we'll have 0, and then again it counts. So जैसे जैसे हम लोग clock देंगे, it can count up to. So I think
जैसे हम लोगों ने कल जब इसको समझा था, तो उसकी हेल्प से हमको इसको समझने में काफी आसानी हो जाए. So we are able to understand how does it work, and then similarly we can go up to this 4 bit counter. 4 bit counter होगा तो कैसे होगा ये भी देख सकते हैं. And similarly we can understand this thing. तो synchronous counter में कैसे काम करता है and how we get output, how these all flip flop works, that we can understand from this. तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जब हम समझना चाहें तो इसके एप्लीकेशन को समझें कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है. इसका ऑपरेशन और इसका लॉजिक हम लोगों ने समझ लिया. सो नाउ व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इज देयर इज नेप्टल कोर्स. बहुत अच्छे से इसको एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्रीनिवासन. उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, मतलब एक पूरा कोर्स है जिसमें सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, डाउन, ये सब कुछ बताते हैं. हम लोग को बेसिकली इतने डिटेल में जाने की अभी जरूरत है नहीं. मुझे लगता है कि हम लोग को इतना कुछ डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. बट जो बेसिक्स है वो हम लोग समझते रहे. तो बेसिक्स में हम लोगों ने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंस और उनकी वर्किंग कैसे काम करते हैं ये सब चीजों को समझा है. रिंग काउंटर, तो रिंग काउंटर होते क्या है और कैसे आए हैं ये सब का कंसेप्ट. सो और दूसरा चीज हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है. हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं. तो रिंग काउंटर क्या होता है, कैसे काम करता है, this much we will try to go, and then we go to the next part of this unit where we will discuss computer memory. So first let us try to know what are shift register counters. शिफ्ट रजिस्टर हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, काउंटर भी पढ़े हैं. शिफ्ट रजिस्टर काउंटर क्या होते हैं? So a shift register, unlike a counter, has no specified sequence of states. However, if the serial output of the shift register is fed back to the serial input, we do get a circuit that exhibits a specified sequence of states. And the resulting circuits are known as shift register counter. तो ऐसे तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, डेटा मोबिलाइजेशन का एक मॉड है. पैरेलल इन, पैरेलल आउट, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, ऐसे 4 मोड हम लोगों ने देखे हैं. एंड यहाँ पे इस तरह से काउंटर की तरह ये काम नहीं करता. ये एक तरह से डेटा मोबिलाइजेशन, डेटा कैसे मूव करता है, डेटा कैसे शिफ्ट करता है, इसको फैसिलिटेट करता है. तो लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हम सीरियल आउटपुट को शिफ्ट रजिस्टर के फिर से सीरियल इनपुट में लगा दे, मतलब यू थिंक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन, सीरियल आउट, एंड देन अगेन पुट वी बैक ऑन. जो आउटपुट आया सीरियल आउटपुट, उसको हम लोग फिर से सीरियल इन में लगा दे. तो एक ऐसा सर्किट बनेगा जो स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स दिखाता है. मतलब उसमें एक, जैसे हम लोगों ने डिकेड काउंटर देखा तो कुछ कुछ नंबर तक जाता है, देन ट्रंकेटेड, फिर गोज बैक टू दैट. सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी सी हियर एज वेल इफ वी टॉक अबाउट दिस शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स. Then, depending upon the nature of the feedback, we have 2 types of shift register counters, namely the ring counter and the shift counter. इसी में 2 तरह का शिफ्ट रजिस्टर काउंटर होते हैं, एक रिंग काउंटर, एक शिफ्ट काउंटर. हम लोग शिफ्ट काउंटर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है. हम लोग रिंग काउंटर को समझेंगे, रिंग काउंटर क्या होता है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिंग काउंटर एंड व्हाट अबाउट रिंग का मतलब इसमें क्या है, कुछ ऐसा है क्या. So a ring counter is obtained from a shift register by directly feeding back the true output of the output flip-flop to the data input terminal of the input flip-flop. मतलब सीधे सीधे अगर हम उस शिफ्ट रजिस्टर के आउटपुट को सीधे सीधे हम फिर से इनपुट में फीडबैक कर दें, तो ये रिंग काउंटर बनता है.
ये हम लोगों ने पहले भी बात किया है। Then if D flip-flops are being used to construct the shift register, the ring counter, also called a circulating register, can be constructed by feeding back the Q output of the output flip-flop back to the D input of the input flip-flop. Simple सा बात है. If JK flip-flop are being used, then Q and Q outputs, Q bar outputs of the output flip-flop are respectively feedback to the JK input of the input flip-flop. Q Q bar जो आता है उसको हम लोग J और K में फिर से वापस फीड करा दें, और अगर हम लोग D यूज करें तो D में एक ही होता है, दूसरा वाला टर्मिनल उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वहां पे हम उसके आउटपुट को Q आउटपुट को इसके इनपुट में फीड करा दें, तो ये रिंग काउंटर बन जाता है. So let us see how does it look like. You see, this is 4-bit ring counter. It is made of D flip flop. इसका ये इनपुट है, ये यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे हम लोग देख ले. If it is like this, then इसको हम लोग फिर से फीडबैक कर दे रहे. You see, this is again goes back to this, and then you collect output at these 4 points, Q0, Q1, Q2, Q3. So this is 4-bit ring counter, and if you see the clock is given, clock एक ही clock सब जगह दिया गया है. So this is ये कैसा counter है? This is synchronous. We can say this is synchronous counter, and it is made of shift register. तो रिंग काउंटर की बात हम लोग कर रहे हैं. नाउ लेट अस रीड दिस आउट, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस. ये क्या है? बेसिकली क्लॉक पल्स है. क्लॉक हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लॉक दे रहे हैं. क्लॉक से वो जब हम क्लॉक ट्रिगर करता है, मतलब जैसे लेवल के लिए एज ट्रिगर जो भी होगा, वो एक किसी स्पेसिफाइड टाइम पे क्लॉक में वो ट्रिगर करेगा. उसी के टाइम पे वो इनपुट रीड करेगा, एंड देन इट विल प्रोसेस टू द आउटपुट. और यहाँ पे हम लोग देखें तो एक क्लॉक ऐसे नॉर्मल क्लॉक है, हर एक पल्स ट्रेन ऑफ पल्सेस लाइक दैट, एंड देन दिस इज शोज द 4 जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे, 4 फ्लिप फ्लॉप, वो कैसे कहाँ पे ऑन होते हैं, कहाँ पे ऑफ होते हैं, कब अप डाउन, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं. So let us read this. Let us assume that flip-flop 0 is initially set to logic 1 state. Flip-flop 0 कौन है? This one, पहला वाला जो flip-flop होता है, it says it gives least significant digit and the last one gives most significant digit. Okay. So हमने ऐसा माना कि flip-flop 0 initially set to the logic 1 state and all other flip-flops are reset to the logic 0 state. The counter output is therefore 1 0 0 0. तो ये कह रहा है कि जब शुरू कर रहे हैं हम लोग, ऐसा माना कि हमने यहाँ पे 1 है और बाकी सब जगह 0 है, ऐसे क्लियर रिसेट ऑप्शन होता है ना यहाँ पे, तो वहां से ऐसे मान लो इनिशियली ऐसे सेट किया गया. देन व्हाट विल हैपन? तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेट 1 0 0. ये हम लोग आउटपुट में देख रहे हैं. विद द क्लॉक पल्स, this one gets shifted to the second flip-flop output and counter output becomes 1 0 1 0 0. है तो ये शिफ्ट रजिस्टर ही, तो जैसे नेक्स्ट स्टेज आएगा, this will shift to this another one. इस स्टेज का बात कर रहे हैं. देखो ये क्या है? this is 1 0 0 0. ये सारे ऑफ है. फिर यहाँ पे जब नेक्स्ट ट्रिगर होगा, दिस विल बी ऑफ, दिस विल बी ऑन, दिस विल ऑफ. ये जैसे देखे हम लोग, ये जो 1 है ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे शिफ्ट हो रहा है, फिर ऐसे शिफ्ट हो रहा है. So you see this in next stage, this number goes like this. You see in output 1 0 0 0, then 0 1 0 0, then it becomes 0 0 1 0, then it becomes 0 0 0 1. और फिर फोर्थ क्लॉक पल्स में काउंटर आउटपुट विल अगेन 1 0 0. तो ऐसे क्या होगा? ऐसे ही ये काउंट करते रहेगा. द काउंट साइकिल रिपीट्स इन द सब्सिक्वेंट क्लॉक पल्सेस
Circulating register of this type find wide application in the control section of microprocessor based system where one event should follow the other. तो इनका यूज कंट्रोल सेक्शन में होता है माइक्रो प्रोसेसर में। और रिंग काउंटर का मतलब रिंग काउंटर कैसे होते हैं ये समझ में आ गया। तो रिंग काउंटर हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं कि एक तो हम लोग शिफ्ट रजिस्टर पहले से जानते थे, दूसरा शिफ्ट रजिस्टर से रिंग काउंटर कैसे बनता है ये समझा कि इसके आउटपुट को हम अगर इसके इनपुट में फीड करा दें तो ये बन जाएगा शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। और रिंग काउंटर हमारे सिलेबस में है तो हम लोग रिंग काउंटर सिर्फ पढ़ रहे हैं, शिफ्ट काउंटर क्या होता है हमने नहीं पढ़ा, हमको उसकी जरूरत नहीं है अभी। एंड फॉर if somebody is curious to know they can look जो हम लोग किताबें फॉलो कर रहे हैं उन्हीं सब किताबों में ये सब चीजें डिस्कस है। देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस बट हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे सिलेबस में है, जितने की हमको जरूरत है। सो दिस इज अबाउट शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। देन वी टॉक अबाउट रिंग काउंटर। रिंग काउंटर क्या होते हैं ये हम लोग समझ लिए, और रिंग काउंटर सिंक्रोनस है ये हमने इसको देख के समझ लिया। एंड देन हाउ डज इट वर्क ये हमने समझ लिया। एंड कैसे इसका क्लॉक पल्स होता है, टाइमिंग के सर्किट में अगर हम टाइमिंग वेव फॉर्म देखें तो कैसे चेंज हो रहा है। यू सी दिस इज ऑन, देन दिस इज ऑन, देन दिस इज ऑन, देन दिस इज ऑन, and then again it repeats, it keep on repeating. And this is 4 bits, so you see the numbers in the output 1 0 0 0, then 0 1 0 0, then 0 0 1 0, then 0 0 0 1, and then again goes back to 1 0 0 0. So this is how this counter works. And यही जो है इसी का मतलब this has a lot of application। कहाँ पे अप्लाई होता है तो ये बोले कंट्रोल सेक्शन इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे।